بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل امر من الاهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم سامعین، پچھلی 4-5 جمعہ سے مسلسل طلاق کے حوالے سے، اس کے بڑھتے واقعات اور اس کی شرح میں نظر آتے اضافے کے حوالے سے ضروری باتیں ہم نے ملاحظہ فرمائی، اور پچھلی جو جمعہ سے ہم نے طلاق کے جو اسباب تھے وہ بھی ملاحظہ فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے کاموں سے دور رہ کر اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو، معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آج کی اس نشست میں جو اہم نشست ہے، طلاق کے حوالے سے، اس کی قسموں کے حوالے سے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، تاکہ طلاق کے متعلق جو علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ علم بھی ہم تک پہنچ جائے، اور جہاں کہیں پر بھی ایسی غلط حرکتیں کی جاتی ہوں وہاں پر ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں. تو کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ضروری طور پر جو مسائل ہیں، ورنہ طلاق اور نکاح کے جو مسائل ہیں وہ ایک نشست میں ہم اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو ضروری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اور یہی اہم نشست ہے ان تمام نشستوں میں کہ طلاق کے اسباب کو سمجھ لینے کے بعد ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ طلاق کیا ہے، طلاق کی قسمیں کتنی ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، اور طلاق کب واقع ہوتی ہے، طلاق ہو جائے تو پھر عورت کیا کرے، کتنے وقت تک وہ عدت گزارے، عدت کے دوران شوہر پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اور کن لفظوں سے طلاق رجعی ہوتی ہے، کس طریقے سے طلاق بائن ہوتی ہے، اور کن لفظوں سے اور کتنی طلاق سے طلاق مغلظہ واقع ہوتی ہے. یہ تمام باتیں ہمیں جان لینے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہی باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. واقعات میں کمی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید کسی کے دماغ میں یوں ہو کہ کہاں آج کل طلاقیں ہوتی ہیں.
लेकिन ऐसा नहीं है। तलाक बहुत बाद में होती है, पहले केसेस चलते हैं और मुकदमे दायर होते हैं। पहले लड़कियां अपने ससुराल से निकलकर मैके जाती हैं, वहां न जाने कितने साल गुजारती हैं, तब जाकर तलाक की नौबत। तो हम उन्हीं कामों की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करें जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बेहतरीन मुआशरा, हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा कबीला, जब उसके दरमियान हम अपनी जिंदगी गुजारें तो हमें सुकून मयस्सर हो, चैन की नींद मयस्सर हो। कल दोपहर में तकरीबन 2 बजे के बाद एक शख्स आया और उसने मोबाइल दिखाया, कहा कि ये मैसेज है और फला तारीख को उसने ये मैसेज भेजा था, तलाक वाक़ई हुई है। कल की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता। तलाक के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? और उसका तो अभी निकाह हुआ था, रुखसत ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही तलाक। रोज बरोज वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पिछले जुमा का खिताब खत्म हुआ, जुमा के बाद शनिचर को एक शख्स मुफ्ती साहब किबला के पास आकर फूट फूट कर रो रहा था, सिर्फ इसलिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती क्यों हुई? वजह उसकी यही है, हमने तलाक, निकाह तो कर लिया लेकिन तलाक का जो तरीका था वो तरीका हमने नहीं सीखा। और उसकी जो रोना, उसको जो अफसोस था, उसमें एक रीजन ये भी था, मुझे तलाक नहीं देनी थी, मैं दे रहा था उस वक्त, मुझको मालूम था कि तलाक नहीं देनी चाहिए। इर्द गिर्द से ऐसा माहौल कायम किया गया कि मुझे तलाक देनी पड़ी। ये हालात है। और दिन ब दिन, और फिर मस्जिद में, अल्लाह के घर में खड़े होकर कहता हूँ, बनावटी वाक़या आपके सामने पेश नहीं करता हूँ, मेरी आदत है। फूट फूट कर रो रहा था, वो कह रहा था कि हाँ मुझको मालूम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। और उसके बाद वो खुद जब मसाइल बयान किए गए और कहा गया कि तलाक मुगल्लज़ा हो चुकी है, अब अगर तुम्हें वापस लाना हो तो फिर ये कि वो किसी और से निकाह करे, वो तलाक दे, फिर इद्दत गुजारे, तब जाकर तुम उससे निकाह कर सकते हो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। जेब से कागज निकाला, था कुछ आयतें मैं भी लिख कर लाया, जरा इसको देख लो। यानी कि वो ये कहना चाहता था कि शायद कोई सूरत निकल आए। कहा कि यार तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। कहा कि हाँ मैं तो सोच ही रहा था, लोगों ने सोचने नहीं दिया, लोगों ने मुझे सोचने नहीं दिया। आज जब वो नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे जब मेरी नजरों के सामने जब बैठे होते हैं, तब मुझको एहसास होता है कि मैंने कितना गलत काम किया है और किस कदर मैंने गलत हरकत अंजाम दी है। तो हालात हम खुद बिगाड़ रहे हैं, हमारे माहौल को हम खुद बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर हम रोते भी हैं, अफसोस भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि शरीयत आपको ये मौका देती है कि आप इस तरीके से शर्मिंदा होने के जो लम्हात थे वो आ सकते? शरीयत तो बहुत पहले रोक रही है। मैंने इस पर भी तवज्जो दी, देखो कि जहां जहां तलाक का हुक्म है वहां वहां पर शरीयत ने हमको गौर और फिक्र करने का वक्त दिया है। ये तो हमारी अपनी आदत है कि हम खिलाफ सुन्नत, खिलाफ शरीयत तलाक दे बैठते हैं, जिसकी वजह से बाद में पछताने के सिवा कोई चारा नहीं। आओ मैं आपको बताऊं, तलाक अगर ऐसी सूरत आ जाए, अब निबाह की कोई सूरत नहीं बनती, तो इस्लाम मजबूर तो नहीं करता, लेकिन उसने तलाक का एक रास्ता दिया है। और उसमें भी जो रास्ता है वो किस कदर गौर और फिक्र वाला, यानी कि बंदे को सोचने का मौका मिले, करूं तो क्या करूं। अब देखिए, तलाक की जब नौबत आ जाए तो हमें तलाक के मसाइल पहले सीख लेना चाहिए। मैंने पहले बताया था, बाद में भी तो किसी मुफ्ती साहब को तलाश करना, इससे पहले कि ये नौबत आ जाए पहले ही मुफ्ती साहब से बातचीत हो जाती है और वो जो तरीका बतला दे उसी तरीके के मुताबिक ही हम अगर आए तो तलाक दे।
ताकि पछताने की नौबत ना आए ना। तलाक की 3 किस्में हैं, याद रखना। कितनी किस्में हैं? ये क्लास चल रहा है, आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए ताकि ये याद रहे। 3 किस्में हैं तलाक। एक तलाक अहसन, कौन सी? अहसन। दूसरी तलाक हसन, और तीसरी तलाक बिदई। तलाक अहसन जो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक दी जाए, ये इसको तलाक अहसन। तलाक हसन ये अहसन से कम दर्जा रखती है, अभी बताता हूं, इसमें जो शर्तें हैं वो भी याद। तलाक बिदई ये वो तलाक है जो खिलाफ सुन्नत और खिलाफ शरीयत किसी को तलाक दी, कि जिसमें गुनाहगार भी हो और जो ममनू हो। तलाक अहसन क्या है? देखो, समझो, शरीयत को समझने की कोशिश करो, और अल्लाह ने जो इस्लाम मजहब दिया है ना, उस मजहब को भी समझने की कोशिश करो। तलाक अहसन, ये तलाक अहसन क्या है? कि जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक तलाक दी जाए। कैसे? कहा कि सबसे पहली शर्त ये है कि तौहर में तलाक देना। तौहर यानी पाकी के दिन, औरत की पाकी के जो दिन है ना, उसको क्या कहते हैं? तौहर। और वो तौहर भी कैसा होना चाहिए? जिसमें हमने औरत से कुर्बत न की हो। तवज्जो है ना? ऐसे पाकी के दिन के अभी हमने उससे कुर्बत न की। क्यों? देखो, इस्लाम समझने की कोशिश करो, ये कैसे रोकता है? तलाक का हुक्म तो दिया, लेकिन रोकता भी है। इसलिए कि जब कुर्बत नहीं की होती तो आपको औरत की तरफ मैलान ज्यादा होता है, और जब मैलान और रग़बत ज्यादा होता है तो तलाक की नौबत नहीं आती। लेकिन जब वो मैलान कम होता है, कब कम होता है? कुर्बत हो जाने के बाद। तो जब कुर्बत हो जाए तो उस वक्त नहीं, कुर्बत ना हो ऐसे तौहर में एक ही तलाक दो, और वो भी किस लफ्ज से? कहा? लफ्ज़े तलाक से। और भी बहुत सारे लफ्ज हैं, उस लफ्ज भी सीखने। एक है सरीह और एक है किनाया। सरीह लफ्ज यानी कि तलाक। तो लफ्ज़े तलाक से यानी कोई कहे कि मैंने तुझे एक तलाक दी, ये बेहतर। ठीक है? क्या कहा? मैंने तुझे एक तलाक दी, और फिर जब वो तलाक दे तो उसको छोड़े रखें, यानी कि उससे न मुजामात करे, न उससे रुजू करे, न उसको बुलाए, न उससे करीब हो, क्योंकि तलाक देना है ना। तो तलाक देना है तो फिर उसको छोड़ देना है। एक तलाक देना है, लफ्ज़े तलाक से देना है, बाकी के दिनों में जिसमें कुर्बत नहीं हुई उसमें देना है, और रुजू भी नहीं करना। होगा क्या? मैंने तुझे तलाक दी, ये लफ्ज जब हम कहेंगे पाकी के, उन पाकी के दिनों में जिसमें कुर्बत नहीं हुई और इद्दत गुजरने तक हम उससे रुजू ना करें, एक तलाक वाक़ई हो जाएगी और वो निकाह से भी निकल जाएगी। वो अब 3 बोलने की क्या जरूरत? जब औरत एक तलाक से निकाह से निकल जाती है तो फिर अब 3 एक साथ बोलकर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने की क्या जरूरत? ये तलाक अहसन। तलाक हसन यानी हर पाकी के दिन में, यानी कि मखसूस अय्याम आए, उसके बाद वो खत्म हो गए तो पाकी के दिन शुरू हुए, फिर मखसूस अय्याम आए, फिर पाकी के दिन शुरू, फिर मखसूस अय्याम आए, फिर पाकी के दिन शुरू हुए। 3 हुए ना? हर तौहर में जिसमें कुर्बत नहीं हुई एक एक तलाक देना, 3 तलाकें देना, ये तलाक हसन है। अब इसमें शरीयत हर तलाक के बाद 25 या 15 या 20 दिन सोचने का मौका देती है। सोच लो, एक दे चुके हो, कोई सूरत बन जाए, निभाह की सूरत बन जाए, उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ जाए, कितने दिन तक? 15, 20 या उससे ज्यादा दिन, उसको मौका दिया जाता है। फिर जब नहीं नभती और वाकई में तलाक देनी ही है तो कहां वो दिन गुजर जाने दो जो मखसूस अय्याम है, माहवारी के दिन है। फिर जब वो तौहर के दिन आए, पाकी के दिन,
बगैर मुजामत किए उसको एक और तलाक दो। तो इस तरीके से 3 तोहरों में 3 तलाकें देना ये तलाके हसन है। इसका दर्जा कम है, वो तलाके अहसन है कि बाकी के दिन में एक तलाक देकर इद्दत के अंदर रुजू भी नहीं करना, जिसकी वजह से वो निकाह से खारिज हो जाए। तीसरी तलाक तलाके बिदई, माहवारी की हालत में तलाक देना गुनाह है। क्या है? गुनाह है। हम तो देखते भी नहीं ये मौका मोहर, हम तो मकान वगैरह कुछ भी नहीं देखते। हमारा तो मामला ये है कि जब कभी खेलवाड़ करना हुआ तो हम कहीं पर भी आयतों से खेलवाड़ कर लेते हैं। हम तो कुछ भी नहीं देखते कि उसके अय्याम कौन से चल रहे हैं। हम तो तोहर के भी ख्याल नहीं रखते, हम तो मखसूस अय्याम के भी ख्याल नहीं रखते, हम जगह के भी ख्यालात में नहीं, यानी कि उसका भी ख्याल नहीं रखते कि हम कहां खड़े हैं, किस मोड़ पर है, किस जगह पर है। अब होता यह है कि मखसूस दिनों के अंदर तलाक देना ये तलाक के बिदई है, या एक से जायद तलाक एक ही मजलिस में दे देना ये तलाक के बिदई है। और हमारे मुआशरे में न तलाक अहसन की तरफ किसी की तवज्जो है, न तलाक हसन की तरफ किसी की तवज्जो है। अगर हम देते हैं तो तलाक बिदई, जिससे अल्लाह भी नाराज होता है और रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं। यार वो तरीका अपनाओ ना जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी रहे। और वो तरीका कौन सा है? वो तलाक के अहसन का तरीका है। और अगर इससे नीचे उतरे तो तलाक हसन का तरीका है। लेकिन तलाक बिदई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और कहा कि तो हुजूर 3 तलाकें दे दी हैं। हुजूर नाराजगी की हालत में खड़े हो गए और हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम आयतों से खिलवाड़ करते हो, हालांकि अभी मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। एक साथ 3 तलाकें देकर तुम आयतों से खेल रहे हो, तुम अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर रहे हो। करीब में एक शख्स बैठे थे, रिवायत में आता है कि वो हजरत उमर थे। मुस्तफा करीम से इजाजत तलब करते, या रसूल अल्लाह इजाजत दे मैं उसका सर कलम कर दूं कि जिसने आपको नाराज किया है। हुजूर फरमाते नहीं, क्योंकि ये तो एक गुनाह है ना, गुनाह की वजह से किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। हुजूर ने उनको रोके रखा, लेकिन हुजूर नाराज हुए। और हमारे मुआशरे में जो भी तलाकें होती हैं ये तलाक बिदई होती है कि जिससे अल्लाह भी नाराज होता है और रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं। तो ये तलाक की किस्में हैं। सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि कभी ऐसी नौबत अल्लाह न करे, लेकिन अगर आ भी जाए तो फिर हमें कैसे ये अलग करना। और ये मसाइल सिर्फ आप ही को नहीं, सबसे ज्यादा तो वकीलों को सीखने की जरूरत है। ये तो अभी ट्रिपल तलाक वाला मसला आया, तब जाकर वो एक कागज में 3 तलाक एक साथ नहीं लिखते, वरना उन्हें भी ये मसला मालूम होना चाहिए कि एक ही तलाक तोहर के दिनों में देने की वजह से और रुजू न करने की वजह से वो निकाह से खारिज हो जाए। फायदा क्या है पता है आपको? ये जो 3 देकर रोते हैं ना, तलाक के अहसन में हमें रोना नहीं पड़ेगा। तलाक के अहसन में हमें रोना नहीं पड़ेगा, हमें पछताना नहीं पड़ेगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 तलाक का इख्तियार दिया है। आपने तो अभी एक ही दी है, कितनी बाकी है? 2 बाकी है। निकाह से अगर खारिज हो भी गई और उससे पहले कहा जो इद्दत के अय्याम हैं, अगर चाहे तो उसमें रुजू कर ले। एक तलाक तो हो ही जाएगी, लेकिन उसमें रुजू कर ले तो अब उसके लिए निकाह की भी जरूरत नहीं। अच्छा, रुजू कैसे होगा? कहा वो किसी गवाह को बिठा कर कहे कि मैंने अपनी बीवी से रुजू किया। अच्छा, गवाह की भी जरूरत नहीं, वो खुद कहे कि मैंने अपनी बीवी से रुजू किया। अच्छा, वो काम कर ले जो एक मर्द एक औरत से करता है, उसको छू ले शहवत के साथ, उसको बुला ले, उससे कुर्बत कर ले। ये सब रुजू के तरीके हैं। और रुजू का मतलब ये भी है, औरत अगर इनकार करे तब भी रुजू हो जाएगा। मर्द रुजू करता है और औरत इनकार भी करे तब भी रुजू हो जाएगा, अगरचे वो इनकार करे। ये सारी बातें हमें इस बात का दर्द देती है। इस्लाम ने मजबूरी में तलाक का हुक्म तो दिया है, लेकिन ज्यादा बचाने की कोशिश की और फिक्र का मौका दिया है।
تو اگر ہم سے طلاق رجعی ہو بھی گئی اور ہم نے اس میں رجعت نہ کی اور ایک طلاق ہو گئی اور وہ نکاح سے نکل گئی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب اس کو لانا ہو تو کیا کریں گے؟ اب حلالے کی صورت آئے گی؟ اس میں حلالہ نہیں ہے، اس میں صرف نکاح ہے. پھر سے نئے سرے سے نکاح کر لو، اب کوئی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے نکاح میں آ جائے. ساری پریشانیاں اور یہ مفتیان کرام کو پریشان کرنا یہ 3 طلاقوں کی وجہ سے. اس کی وجہ سے 3 طلاق کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ حلالے کا ہے نا. وہ مرد جو چند دن پہلے اپنی غیرت کے مطابق یہ کبھی پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کی بیوی کی طرف کوئی دیکھے. جب بہت سارے لوگ بلکہ بالخصوص غیر مذہب اس پر بھی ایک اعتراض کرتے، دیکھو اسلام تو حلالے کا حکم دیتا ہے اور اسلام ایک عورت کو دوسرے کے یہاں بھیجتا ہے. یہ ان کی طرف سے پروپیگنڈ ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم اسلام یہ حکم دے کر طلاق کے واقعات کو روکتا ہے. طلاق کے واقعات کو روکتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے، قتل کے بدلے میں قتل، اس میں زندگی ہے. اللہ اکبر. عقل سے سوچے تو قتل میں کیا زندگی ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے تو قتل کرنے میں زندگی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے، اور رسول اللہ کے ارشادات فرماتے ہیں مطلب یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. اسی کو تعبیر کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. جب قصاص کی سزا مقرر کی جائے گی، نہ کسی کو قتل کرے گا نہ وہ خود قتل ہوگا. اور اسلام حلالے کا حکم نہیں دیتا، یہ بھی یاد رکھنا. جیسے آج ہم نے اپنے دماغوں میں بٹھا لیا ہے اسلام حلالے کا حکم دیتا ہے. نہیں، اسلام تو دوسرے نکاح کا حکم دیتا ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. بھائی تو نے 3 طلاق تو دے دی، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اسی کو واپس لینا چاہتا ہوں. کہا واپس ایسے نہیں آ سکتی، تو نے کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا ہے کہ تو جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے اس کو واپس بلا لے. اب تیرے لیے یہی ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اور جب وہ چاہے تو پھر طلاق دے اور عدت گزار کر پھر وہ تمہارے پاس. یہ مسئلہ اور حل بیان کیا ہے، حلالے کا حکم نہیں دیا. حالانکہ حدیث میں اگر دیکھیں تو حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان پر اللہ کی لعنت، ان پر اللہ کی لعنت. اب میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کون مراد ہے حلالہ کرنے والوں سے؟ یہ وہ لوگ مراد ہے جو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیسہ لے کر حلالہ کرتے ہیں. لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچے بکھرنے سے بچ جائے، اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ یہ میاں بیوی پھر سے مل جاتے ہیں تو ان کا خاندان بسے گا، ان کا خاندان ویران نہیں ہوگا، آباد ہوگا، اور بہترین نیت ہے تو اس پر ثواب بھی ملے گا. اس طرح سے نکاح کر کے پھر بغیر حلالے کی شرط کے، یہ بھی یاد رکھنا، بغیر حلالے کی شرط. اب کتنا لمبا پروسیس ہے. اپنی بیوی کے لیے خود دوسرا شوہر تلاش کرنا کس مرد کو گوارا دیتا ہے یار؟ کون اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اسلام نے جو طریقہ پیش کیا ہے اس طریقے کو اپناؤ. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب. اتنا کامل اور اکمل مذہب تمہیں کہیں نظر نہیں آئے. اتنا کامل مذہب آپ کو کہیں اور نظر نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کو قبول تو کرو، اس کو ایکسپٹ تو کر لو، پھر دیکھو اس کی بہاریں کیا ہیں. اس کی وجہ سے تمہارے لیے کتنے سکون کے اسباب اور کتنے سکون کے پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت انتظام فرماتا ہے. اسے ایکسپٹ کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب حلالی کی بات آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 3 طلاقیں دینے کے بعد مفتیان کرام کے پاس جائے گا، ان کا سر کھائے گا، ان کی نیند بگاڑے گا، ان کو پریشان کرے گا. مفتیان کرام اگر مدرسے میں ہے تب بھی ان کے پاس بیٹھ کر ان کے وقت کو برباد کرے گا. خود تو برباد ہوا اور ان کے وقت کو بھی برباد کر کے بچوں کے وقت کو بھی برباد کرے گا. ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے یار، کس وقت ان کے پاس جانا ہے یہ بھی ابھی ادب ہم کو معلوم ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے
अगर उन्हें मालूम हो जाता कि फला जगह मेरे आका की हदीस है, उसको हासिल करने के लिए पैदल उसके घर जाते। चचा के बेटे थे ना, बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, अहले बैत में से, हुजूर के चचा के बेटे। दरवाजा खटखटा देते तो कौन होता कि कहता कि अभी ना आओ, लेकिन उनका तरीका ये था, जब वहां पहुंचते दरवाजा बंद देखते, उनकी ओटी पर बैठ जाते और नींद आती तो वहीं सो जाते। वो खुद कहते हैं जब हवा चलती तो फिर गरम गरम उसकी तपश मेरे चेहरे पर आती और वो गर्द लेकर आती, गर्द मेरे चेहरे पर पड़ती, यहां तक कि वो शख्स बाहर निकलकर मुझसे कहता और मुझे देखता तो कहता कि हजरत आप हैं, अगर दरवाजा खटखटा देते या किसी से कहलवा देते तो मैं आपके पास आ जाता। उस वक्त आप कहते ना, रसूलुल्लाह ने हमको यही सिखाया है, इल्म हासिल करने के लिए दूसरों के दरवाजे पर जाना पड़े तो जाओ, लेकिन अदब देखो, दरवाजा नहीं खटखटाया। तो मुफ्तियाने किराम के पास भी जाए तो अदब का लिहाज रखें, वक्त को देखें, किस वक्त को, आपने तो अपना काम कर लिया, अब मुफ्तियों को परेशान करते हो। अब जब वहां पर पहुंच एक एक देर लेकर, कभी कभी तो अल्लाह अकबर, मैं आपको क्या बताऊं, जवाब होता है 1 मिनट का और मुफ्ती साहब के पास एक एक घंटा बैठकर उनका वक्त बर्बाद करते हैं और एक ही सवाल बार बार दोहरा कर, कभी फोन पर कभी बैठ, देखो तो सही कौन कहां पर, इनका अगला प्रोग्राम क्या है। कभी मदरसे का वक्त हो जाता है, ऐसे वक्त में भी लोग पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वो मदरसा लेट होते हैं। भाई तुम तो बर्बाद हुए, अब उनको भी बर्बाद कराओगे, छूटा करवा के मुतल्लिफ के पास, उनको बख्श दो यार। देखो वक्त है कि नहीं, अगर वक्त है तो बात कीजिए और एक वक्त मुकर्रर कीजिए। तो अदब लिहाज रखना जरूरी है, मलहूज रखना जरूरी है, अदब का लिहाज। जब वहां पर पहुंचते हो तो पूछते, अब जब देखते हैं कि मेरे खिलाफ फैसला आया, 3 तलाकें मैंने दे दी हैं, तो अहले सुन्नत के नजदीक क्या है, आप बोलिए, अहले सुन्नत के नजदीक 3 तलाक दे देने से तलाक वाक़ई हो जाती है ना, 3 तलाक दे देने से तलाक मुगल्लज़ा हो जाती है ना। अब ये साहब बैठेंगे यूट्यूब लेंगे, अब यूट्यूब क्या है, सिर्फ लिख दो तलाक, सुन्नी भी आएगा, शिया भी आएगा, देवबंदी भी आएगा, वहाबी भी आएगा, गैर मुकल्लिद भी आएगा, अहले हदीस भी आएगा, नेचरी भी आएगा, जितने फिरके बातिला है, जिन्होंने जो जो समझा वो सब आए। अब ये साहब क्या करेंगे पता है, क्योंकि हमारी तरफ से तो उनको जवाब दिया गया कि आपके लिए तलाक हो गई है, अब हलाले के सिवा कोई चारा नहीं है, तो ये साहब ढूंढेंगे देखो कोई रास्ता हो। अब देखेंगे कि अहले हदीस बोल रहे हैं कि 3 तलाक देने से एक ही वाक़ई होती है, ये अच्छा मौलवी है, ये अच्छा मौलवी, हाँ, फिर उसको कबूल कर लेंगे। हम आसानी चाहते हैं भाई, हम अपनी आसानी चाहते हैं, हम शरीयत को तबीयत से तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जब यूट्यूब पर हमको वो मिल जाता है गैर मुकल्लिद जिसके नजदीक 3 तलाक एक ही वाक़ई होती है, तो भाई हलाले से बचते हैं ना, तो फिर अब वो उसी को कबूल करते हैं और कहते हैं कि यही बेहतर है। रफ्ता रफ्ता उनकी तरफ माइल होकर अब हमारा मजहब उसको सख्त नजर आने लगेगा। एक दिन आएगा कि वो उनके फंडों में फंसेगा और फिर फंसकर वो खुद अहले हदीस हो जाएगा। यही मामला है और यही हो रहा है आजकल। चैट जीपीटी का दौर है, लिख दो, सब उठाकर आपके सामने रख देंगे। आपके अंदर इतनी अक्ल है कि जो सही हो उसको उठा सको, है ऐसा। चैट जीपीटी का काम क्या है, वो सारे डेटा उठाकर हमारे सामने रख देता है, सही क्या है गलत क्या है हमें इसका इल्म नहीं होता। भाई शॉर्ट लफ्जों में कहूं, उलमा का दामन थामे सिवा कोई चारा नहीं है। उनके दामन को थामना पड़ेगा जिंदगी और शरीयत के मुताबिक गुजारनी हो तो, और तबीयत के मुताबिक गुजारनी हो तो कौन तुम्हें पकड़ने वाला है। गुजारते गुजारने वाले गुजारिए, कोई हरज नहीं है, लेकिन जब शरीयत के मुताबिक जब सवाल होगा तब पता चलेगा कि आज तो हम सिर्फ तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे, काश कि हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते। अगर आपकी इजाजत हो तो इस टॉपिक को आगे लूं, कुछ मसाइल बाकी हैं, अभी मसाइल तो कम बयान हुए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो आगे ले सकता हूं इंशाअल्लाह, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत अहम। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि सिर्फ बोलो तो तलाक होगी। भाई सिर्फ बोलने से नहीं, लिखने से भी तलाक होती है। अभी वो मसला आ गया।
और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि मसाइल सारे यहाँ बयान नहीं हो सकते, आप मुफ्तियान किराम के पास वक्त निकालकर, वक्त लेकर उनके पास पहुंचकर मसाइल सीख क्यों नहीं लेते? क्यों जब पानी सर से ऊपर पहुंचता है तब मुफ्ती साहब याद आते हैं, और वो भी तबीयत का मुफ्ती, कि जो आपको कहे कि ना 3 देने के बाद भी एक ही हुई है, कितना अच्छा लगता हो, क्योंकि आप तो गए यही जहन बनाकर, यही जहन लेकर गए थे कि ऐसे ही जवाब आना चाहिए, और ऐसा ही जवाब जब सामने से आता है, इससे बेहतर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। अरे भाई, मुफ्ती साहब को भी लोग कहते हैं देखो ना कोई बड़ी किताब है, भाई उनके मसाइल उन्हें पढ़े होते हैं, उन्होंने उसका इल्म हासिल किया होता है, और आप आज आ रहे हो, आपसे पहले हजारों आकर गए हैं। इसलिए तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।